Tells how to do closing, but nobody tells what is closing, why should we do the closing, where should we close the prospect, and most important, when. And nobody is daring to give the framework behind the closure. How to close prospects in a framework, not in a type like say this and your prospect will get closed. No, it doesn't happen. You have to know the core frameworks behind what is closing and how people is get closed. Okay? And in this video I'm going to show you the exact framework that I used for getting many client results. And who don't know me, my name is Dhruv Sachdeva and I am the founder of Graphics Acquisition, and I have helping more than 10 to 15 plus marketing agencies getting them 30, 40, 50, 120 plus meetings of D2C brand founders in daily to daily basis, and have made more than 10k through this strategy. Okay, now I'm gonna show you a strategy in the whiteboard. Let's come to the whiteboard. See, first of all, understand the framework, and before I get into the framework, understand what is closing. So see, there's person A. Okay, my drawing is bad. Just assume it is person A. Okay, then there is person B. Okay, this is person B. Now person B, he is your prospect. Okay, he is your prospect, and A is you, and you want to close him. So first of all, see what is closing. Closing is helping another person. Note it down. Note it down. I'm repeating it again. Okay. Note it down. Closing is helping another person making a decision. Either it will be a yes or either it will be a no. That's it. That's a simple definition of closing. Okay. Listen it one more time. Closing is making somebody helping somebody to make a decision on a call. Either it will be a yes or either it will be a no, and that is for closing. Thus it is the what of closing. ठीक है, समझ गए ना? Now let's move on to why should we close, and see why का आंसर हमें तब मिलेगा जब आपने अच्छे से डिस्कवरी करी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क विद मार्केटिंग एजेंसीज. ओके, so I have to see ki like what's the current situation of my marketing agency, how I can help them, and the main problem कि उनकी अभी problem क्या है in terms of sales, and what's the root cause of that problem, so that I can do gap selling. Means what's their desired outcome, and what's their current situation, and what's stopping them. Okay, what's stopping, which is a obstacle is a gap, and gap is something which you want to sell your solution. Okay, okay, understand this. अब ये है of why you should close. ठीक है, why? क्योंकि if you know that they are attached to bad service, you have to help them. First of all, अपना thinking या हटा लो कि मेरे को close करना है. अपना पहले ये सोचो, I have to provide good work to my clients. Then you will scale. Literally, I am speaking facts. मैं भी बस एक महीने पहले मैं आपको बताता हूँ, आई जस्ट क्लोज वन क्लाइंट. तो उसके पास सारी चीज़ें परफेक्ट थी. आई जस्ट केम टू हिम एंड ही सेड कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करी, एंड उसका इतना अच्छा टेस्टिमोनियल आया है, आप इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हो. ओके, इट्स जस्ट कि हमें क्लोजिंग इसलिए करनी है बिकॉज वी नो ही और दे आर अटैच टू द बैड सर्विसेज, एंड वी कैन हेल्प देम ग्रो दियर बिजनेस थ्रू सेल्स, थ्रू आउटबाउंड सेल्स एक्विजिशन सिस्टम. आप समझ रहे हो ना? So that's why we close. Okay, now let's move on to the how we can close. Let's meet you. Okay, now let's go into the how to do closing. First of all, अपने आप को उन लोगों से दूर करो जो लोग कह रहे हैं कि say this and your prospect will get closed. ऐसा नहीं होता. Understand the framework. ठीक है, ये मैंने अपनी जर्नल में लिखा है, तो ये मैंने यहाँ रखी हुई है. तो first of all, closing. What happens after your discovery call? क्लोजिंग इट ऑल कम्स टू क्लैरिटी. जितना बंदे को समझ में आएगा, जितना बंदे को ट्रस्ट होगा, जितना बंदे को कॉन्फिडेंस होगा, तभी तुम सेल कर पाओगे. ठीक है, यू एग्री विद मी ऑन दैट? ओके, अब ऑल कम्स डाउन टू क्लैरिटी. इसका रीजन भी है. इसका रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड आता है, योर बेस्ट फ्रेंड रिफर्स टू बाय दिस, ठीक है, विच यू नीड, एंड यू विल ऑलवेज डू. क्यों? क्योंकि आपको अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट है, एंड आप और जो आपका फ्रेंड है वो काफ़ी अच्छे से आपको उस प्रोडक्ट के या सर्विस के बारे में बताएगा. एंड इफ योर फ्रेंड डू, यू विल ऑल्सो डू बिकॉज यू आर बोथ इन द सेम सिचुएशन. ओके, सो जस्ट ये एग्जाम्पल से मेरा यही मतलब है
कि क्लैरिटी इज द मेन थिंग विच हैपेंस इन द क्लोजिंग, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी किसी भी कॉल में यू कांट क्लोज एनीबडी, ठीक है। तो क्लोजिंग में आती है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी कैसे, मतलब क्लैरिटी के अंदर क्या आता है? अब देखो, देयर इज वन थिंग, इट्स अ लॉ ऑफ सेल्स दैट यू हैव टू ट्रांसफर योर इमोशंस। ट्रांसफर योर इमोशन मतलब है ट्रांसफर योर स्टेट, ट्रांसफर योर कॉन्फिडेंस। मीन्स हाई टिकट सेल्स में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाई टिकट में पीपल आपके डिलीवरेबल्स नहीं लेते, वो आपका आउटकम्स देखते हैं, ठीक है। व्हाट आउटकम्स यू कैन प्रोवाइड एंड हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू that you can provide them outcomes. That is the thing that people get sold to in high ticket. अगर आप अपना कॉन्फिडेंस किसी को भी शेयर कर सकते हो, यू गोना सेल एवरीथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस शेयर करना आना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर दैट यू नीड टू बी गुड इन रैपो बिल्डिंग, यू नीड टू बी गुड इन कन्वर्सेशन, मेकिंग अ कन्वर्सेशन, एंड देन देयर इज ट्रस्ट. If there is no trust, if you show fake testimonial, if you show fake processes, you are gonna lose that skill, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे, सब छोड़ दो. In the sea of lies, you have to be the honest. Okay, understand this. Now, अब ये तभी होती है when your state transfers, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको, you have to transfer the state. Means ये आप कैसे करोगे? You will do by this of tonality, showing proofs, showing the root causes of problem, showing your solution, showing that you really care about that person, कि तुम रियली में उसकी मदद करना चाहते हो, एंड दैट्स द रीजन यू आर ऑन दिस कॉल टुडे, एंड यू आर फ्रॉम दिस कॉल टुडे फॉर 30 to 45 minutes identifying that problem and telling you the solution and how we can help you in the solution, ठीक है। that's how it the state transfers, ठीक है। now after this there is a one point जो मोस्टली लोग समझ नहीं पाते मार्केटिंग एजेंसी में, एंड कहते हैं कि अरे ये सब तो लाइक इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। बस ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको समझ लो। if your offer is bad, if your marketing is bad, if you're not getting leads, if you're not getting closes, if your close rate is bad, it's not because of competition, it's because of you, your processes, your salesperson or your etc manager, okay, your sales manager. now इसके बाद आता है certainty. certainty, ठीक है। certainty का मतलब ये है a fix, a guaranteed thing, कि मीन्स अगर ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड, ठीक है। अब आपको उसकी पूरी मीनिंग पता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट वर्ड, ठीक है, एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के बाद सर्टेनिटी में भी काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। आई एम गोना गो डीप डाइव इन। फर्स्ट इज योर ऑफर। ऑफर के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है इन माई इंस्टाग्राम, आप जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको नहीं पता ऑफर कैसे बना, ठीक है। ऑफर और आईसीपी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑफर आईसीपी मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, कितने टाइमलाइन में बेचोगे, अगर नहीं प्राप्त हुआ उसे वो, तो आप क्या दोगे, अ गारंटी काइंड ऑफ समथिंग, एंड विच दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। आईसीपी मीन्स विच इज योर आइडियल क्लाइंट पर्सोना, आप किसको बेच रहे हो, उसका क्या फॉलोअर होना चाहिए, उसकी वेबसाइट होनी चाहिए कि नहीं, उसका इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, उसका उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, या उसके बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, इट शुड बी स्मॉल मिड और बिग ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आईसीपी, योर आइडियल क्लाइंट पर्सोनिफिकेशन, आपके क्लाइंट के बारे में पूरी स्थिति, ठीक है। देन देयर इज यू, कि आप कितना अच्छे से बात करते हो, आप कितना अच्छे से टोनैलिटी यूज करते हो, आप कितना अच्छे से लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हो। रैपो बिल्डिंग इज लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई क्लाइंट बात कर रहा है, आप बैठ गए हो माइक बंद करके, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो बोल रहा है हाँ ओके ओके आई अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू रैपो बिल्डिंग, जिससे बंदे को लगे हाँ ये बंदा ही केयर्स अबाउट मी, ही इज लिसनिंग ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग, ठीक है। अब यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए भी क्योंकि आपके पास इसके मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे है लॉजिकल इन्फ्लुएंस। आपका लॉजिकल मीन्स ये यू से ही कनेक्टेड है, ठीक है। लॉजिकल इन्फ्लुएंस कितना है, आप आरओआई के बारे में कितनी बातें करते हो। लाइक मैं आपको बताता हूँ एक चीज, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। पहला है लॉजिकल, दूसरा है इमोशनल। लॉजिकल मतलब वो नंबर्स पे बात करके आप बेच सकते हो उन्हें, आरओआई पे बात करके बेच सकते हो, ठीक है। मीन्स आप फैक्ट्स या लॉजिकल बातें बोलोगे कि हाँ इतने में आपको इतना XYZ अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि हम इतना स्पेंड करें, इतना स्कोप है, ये सब दैट ऑल कम्स इनटू लॉजिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन देयर इज इमोशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इमोशनल इन्फ्लुएंस इज, मैं बताता हूँ, आपने जर्मी माइनर को देखा होगा,
वो कैसे अपनी कन्विक्शन यूज करता है, वो कैसे अपनी परसुएशन यूज करता है, वो स्टोरी टाइम यूज करता है, हिज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। स्टोरी टाइम क्यों यूज करता है वो? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशन। ठीक है, इमोशनल सेलिंग भी आनी चाहिए। इमोशनल सेलिंग इज वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर नेटवर्क बिल्डिंग। ठीक है, ये नेटवर्क बिल्डिंग में भी काम आता है। इमोशनल इन्फ्लुएंस आपका इसलिए होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको पता होगा, जब आई नीड टू थिंक अबाउट इट, विच इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन इन B2B सर्विस इंडस्ट्री, उसमें इमोशनल इन्फ्लुएंस काफी काम आता है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टोरी टाइम की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे हमें because I need to think about is a self objection. It's not I need to talk about my bad. It's not about that value. It's not about the price. It's not about the partner. It's about you. I need to think about it. मुझे सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए, and which is a main root of clarity. उसे अच्छे से clarity नहीं है, and if अगर उसे clarity नहीं है तो उसमें confidence या trust में कोई कमी है, and trust is always built by people who know the people and who care for each other and who like ट्रस्ट को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ट्रस्ट को मैं इतना कह सकता हूँ, इफ़ यू हैव हेल्प्ड समबडी तो वो बंदा आपको सेकंड टाइम पे जरूर हेल्प करेगा, या लाइक आपको ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ही नो यू केयर अबाउट इट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पर भी कम, लेकिन ट्रस्ट काफी जरूरी है, तो इसलिए आपको इमोशनल इन्फ्लुएंस की जरूरत है। देन देयर इज इनका मिक्स consequent selling, which you have to do in B2B. Any complex sale can be resolved by consequence selling. It's nothing, it's just logical influence plus emotional influence. ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। You have to combine the facts and emotion. Means मैं like अगर if you have any objection, for example you have an objection of I can do it myself. ये ऑब्जेक्शन है जो क्लाइंट ने मेरे को दिया, इसका मेरे को एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अब ऑब्जेक्शन है आई कैन डू दिस माई सेल्फ। अब रिस्पॉन्स में बोलूंगा कि कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है, ये मैं बोलूंगा आपसे, कैन आई आस्क यू समथिंग। आफ्टर दिस इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू सी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। अगर वो कहता है नहीं, तो आपको फिर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना स्टार्ट करना है। देन मैं क्या कहूँगा उससे, मैं कहूँगा कि एक्चुअली मैंने कल अपनी दादी के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था। ठीक है, एंड मैं मेन्यू पढ़ रहा था एक्चुअली में, बट उन्होंने लाइक व्हेन आई वाज रीडिंग मेन्यू तो वो कहती यार ये तो मैं भी बना सकती हूँ, तो मैं भी बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ। एंड मैं जहाँ जहाँ मेरी उंगली जा रही थी वो कहती थी मैं सब बना सकती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप सब बना सकते हो तो आपने बनाए क्यों? अब आइदर इसके तीन रीजन हो सकता है, या तो आप बनाना नहीं चाहते हो, या तो आपके पास बनाने का टाइम नहीं है, आइदर वो रेस्टोरेंट आपसे अच्छा बनाता है। अब यहाँ ये तीन जो चीज थी, इट वॉज अ फैक्ट, इट वॉज अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। दादी वाली जो स्टोरी थी, इट वॉज अ इमोशनल इन्फ्लुएंस। तो आप समझ लो ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल एंड इमोशनल इन्फ्लुएंस। जिस तरह से मैंने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया इज नोन एज कॉन्सिक्वेंस सेलिंग। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एंड नाउ let's talk about when you should close the client. You should close the client after the need payoff questions, after when the client can explain to another person. ठीक है, for B2B में यही होता है यार। B2B is something like if the person B which I drawn here, ठीक है, if person B can explain to person C, then 99% of your work is done. Really में, क्योंकि अगर वो बंदा आपकी सर्विस को किसी को और को समझा सकता है, इट मीन्स यू हैव डन योर 99% ऑफ वर्क। अगर मेरा भी यही होता है कि अभी भी जो शायद प्रोबेबली जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा मैं करता क्यों। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, लेकिन तब भी लोगों को नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स सर्विस। ठीक है, इट्स अ बोरिंग सर्विस, तो लोगों को इतनी जल्दी सही समझ में आती। और अगर आप वो समझा देते हो और वो पर्सन सी को वो चीज़ को समझा सकता है, इट मीन्स यू हैव डन योर 99% ऑफ वर्क। ओके, एंड दैट्स व्हेन यू हैव टू स्टार्ट क्लोजिंग। एंड अब यहाँ क्लोजिंग जो है, closing is done by two things. First is permission based. Permission based means after everything, is there anything else that you need to see before moving forward? It's like a permission based. Yes, move on to the objection handling. No, start with the next steps. Ki your onboarding process. What will be the next thing? Second is hard close. Okay, hard close. Hard close is something like, see, I'm gonna, ये मैं example देता हूँ. See, I'm gonna send you the contract and invoice today. And can I ask you something? Is there any reason that you would like to not start this today? Because I have seen many people who just ghost me after everything we have gone through and after everything. And he also said that we love your service, but they still ghost us. ठीक है, तो that is something hard close. You challenge that person thinking कि तुम्हें क्यों लाइक इस चीज को नहीं करना है। ठीक है, बोथ वर्क्स until and unless you have good service. ठीक है, and now
if you are also any kind of marketing agencies जिसको outbound में कदम रखना है and wants a proper outbound sales acquisition system or wants to know some more about offer and ICP or how you can establish for your own, you can book a call. It's given in description or in my comment section. You can book and then we can discuss it. Okay, and that's it for today's video. Subscribe my channel and let's see, follow for more. Bye.